होम में ये लोग आपको नहीं मिलते तो फिर कहाँ जाते आप? फिर तो हम तो रोड पे रहते, फुटपाथ पे। अस्पताल भेजते हैं, जो दवाई अस्पताल में नहीं मिल पाती है वो हमें यहाँ पर दवाई मौजूद होती है तो यहाँ पर देते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने शेल्टर प्रोवाइड करवा रखा है। इस तरह के शेल्टर, स्पेशल शेल्टर जिसे कहते हैं, वो दिल्ली सरकार ने दे रखी है, जिसके अंदर जो काम होती है दिल्ली सरकार के साथ मिलकर जो एनजीओ होते हैं, एनजीओ चलाती है। इसके तो खर्चे भी बहुत होंगे, बिजली का है, दवाइयों का है, और इनको खाना देना, सारा दिन संभालना, वॉशरूम, हर एक जगह पे सर्विस मैन तो होंगे ना, अलग अलग। सारा खर्चा गवर्नमेंट देती है। ये गवर्नमेंट से इस शेल्टर का और ये जो यहाँ का स्टाफ का इनका आता है। इसके अलावा अक्षय पात्रा या खाना दे दो टाइम का, जो पहले स्कूलों में मिड डे मील दिया करते थे, अब वो दिल्ली सरकार के साथ मिलके यहाँ जो एनजीओ रेन बसेरे हैं उन पे खाना दिया जा रहा है। जिसमें अलग अलग तरह के पेशेंट्स हैं। सब यही नहीं कि ट्रॉमा इंजरीज वाले, उसमें टीबी भी है, ट्यूबरकुलोसिस है। उसमें दो तरह का टीबी, एक तो जो फैलने वाला टीबी, उसके लिए भी अलग से हमने कर रखा। जो नहीं फैलने वाला उसको हम अलग से रखा। जो नहीं फैलने वाला तो 2 महीना 3 महीना दवा लेने के बाद उनको हम अलग शिफ्ट कर देते हैं। तो उस तरह का है। एक है HIV वाला। तो इस तरह का अलग अलग हमने वार्ड्स बना रखे, सब में अलग अलग तरह के पेशेंट रहते हैं। ये पूरे दिल्ली में यही एक शेल्टर है या इसके जैसे कुछ और? कुछ और भी है, जिसे एक तो निज़ामुद्दीन सराय का लेखा में है, वो अदर ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। एक हमारी खुद की शेल्टर है महिलाओं के लिए, वो यहाँ पर है दिल्ली में मलकागंज पे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਨ 에ਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ ਤੂਰ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਨ ਬਸੇਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰਨੁਮਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਲੇ ਇੰਜਰਡ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਟ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੁਧਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆ,
ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ फर्क जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? रमजान नाम है। रमजान जी। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। कब से हो दिल्ली से? शुरू से यहीं पे? पैदाइश यही की है, बॉन्ड बिल्डअप इन दिल्ली। जी। केजरीवाल सरकार जो है वो अभी पंजाब में क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं तो केजरीवाल साहब बार बार वहां पे जा रहे हैं, गारंटीज दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें एक बार मौका दीजिए पंजाब में गवर्नमेंट बनाने का तो हम भी आपको बहुत सी सहूलतें देंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो शेल्टर होम बने हैं, रैन बसेरा है, ये दिल्ली जो अभी केजरीवाल गवर्नमेंट है इनके समय से है या इससे पहले भी था? इससे पहले से ही था। तो अभी ये इसमें क्या खास है, क्योंकि केजरीवाल साहब का नाम, क्योंकि बिना शक उनकी गवर्नमेंट है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर पहले भी था तो अब भी था, अभी फर्क क्या है? पहले इसमें सहूलत ज्यादा थी या अब सहूलत ज्यादा है? अब सहूलत बहुत ज़्यादा है। क्या क्या फर्क है अभी? ये अब खाने को मिलता है यहाँ पर, इसके अलावा सर्दियों में नाश्ता भी दिया जाता है। अलग अलग रैन बसेरे से उसके हिसाब से ये थोड़ा अलग है। ये मॉडल टाइप का शेल्टर है जहाँ पर सिर्फ पेशेंट रहते हैं। अगर बाहर की देखा जाए तो बाहर इस टाइम खाना वाना दिया जा रहा है और पहले सर्दियों में चाय पानी या फ्री में रहने का सुविधा दे रखा है। और ये वाला शेल्टर में सिर्फ पेशेंट ही लोग रहते हैं, जो लोग बीमार रहते हैं वो लोग ही रहते हैं यहाँ पर। आप किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं यहाँ पे? किस तरह की का काम करते हैं? कब से जुड़े हुए ये सर्विस के साथ? ये सर्विस के साथ मैं 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर एज अ मेडिकल सोशल वर्कर काम करता हूँ। यहाँ पर उन लोगों के साथ काम करते हैं जो लोग बेघर सड़कों में रहते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। जैसे मान लो अगर हम अपना एग्जांपल देते हैं, अगर हम बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद हम घर जाते हैं और घर जाने के बाद हमारा अच्छे से देखभाल केयर होती है, न्यूट्रिशन डाइट पे ध्यान दिया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स में ध्यान जाता है, जो हॉस्पिटल के पेपर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो सड़क मारने से क्या तो वो खो जाता है या पूरी तरह से इलाज न होने पर रह जाता है और बीमारी और बड़ी हो जाती है, गंभीर हो जाती है सही समय में ट्रीटमेंट ना मिलने पर। तो यहाँ पर हम पेशेंट को जब लेकर आते हैं, यहाँ पर इनका डाइट का ख्याल रखा जाता है, इनका न्यूट्रिशन का या मेडिकेशन का ध्यान रखा जाता है। उसके साथ साथ क्या नीड है, साइको सोशल काउंसलिंग की नीड है तो वो प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लो कोई ऑर्थो का पेशेंट एक्सीडेंटल केस आया, उनको पट्टी की ड्रेसिंग की जरूरत है तो उनको यहाँ पर ड्रेसिंग प्रोवाइड करवाया जाता है हर एवरीडे के हिसाब से। तो उस तरह का दिया जाता है, अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग तरह का डाइट दिया जाता है यहाँ पर। और जो उनकी नीड है, जो उनकी केयर है वो यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ये मरीज कहाँ से आते हैं? खुद ब खुद पहुंच जाते हैं या फिर कहीं से इनको लाया जाता है? कैसे ये लोग कैसे यहाँ पे इकट्ठा होते हैं? क्या ये तो कई पार्टनर्स और एनजीओ से वो लेकर आते हैं, कुछ हॉस्पिटल से आते हैं, कुछ ऐसे भी है जो पुलिस वाले के पास आते हैं उससे भी आती है, कुछ हम अपने वैन से लेकर आते हैं। जो आप वैन देख रहे हो इसमें हमारी क्लिनिक लगती है, अलग अलग एरिया में जाकर मोबाइल वैन क्लिनिक लगाते हैं जिसमें डॉक्टर, नर्स एंड मेडिकल सोशल वर्कर होते हैं। हम वो आइडेंटिफाई करते हैं किसको जो है, कौन गंभीर है, किसको रेगुलर मेडिकल केयर की ज़रूरत है या हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, तो तब हम उनको वहाँ से मोबिलाइजिंग करके काउंसलिंग करके फिर यहाँ लेकर आते हैं। मुझे ये भी जानना है कि जब गवर्नमेंट कोई भी बननी होती है, जब कोई बंदा इलेक्शन में खड़ा होता है तो उससे पहले बहुत बड़े बड़े वादे करता है, तो उसके बाद जब उसको मिल जाती है, वो सत्ता में आ जाता है तो 4 साल तो वो सोया रहता है। तो लास्ट में जब पता होता है कि अब नेक्स्ट इलेक्शन आने वाली तो वो जाग जाता है और बहुत सी सेवाएं देता है। तो ये मैं जानना चाहती हूँ, जब से ये केजरीवाल गवर्नमेंट बनी है तब से इसी तरह से सहूलतें मिल रही हैं या फिर एंड में आके या फिर जब किसी स्टेट और में उन्होंने इलेक्शन लड़नी होती है तब यहाँ पे सुधार कर देते हैं? बाकी चीज़ों का तो आइडिया नहीं है मेरे को, बट दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ का काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। पहले हम जब हॉस्पिटल जाते तो काफ़ी दिक्कतें आती थी, काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता था। जैसे मान लो हमें लाइन में लगे रहना पड़ता था, लंबी लंबी कतारें होती थी। अब उस तरह की दिक्कतें नहीं आती हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी काफ़ी फैसिलिटीज दिया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ पेशेंट रहते हैं, ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल से चलता है। इनका सिर्फ रहने का और खाने का इनका यहाँ बंदोबस्त किया जाता है, बाकी सारा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से होता है। तो काफ़ी आसान है पहले से। पहले काफ़ी दिक्कतें फेस करना पड़ता था, काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता था। अब इतना दिक्कतें हॉस्पिटल में नहीं होती है, मेडिसिन भी आसानी से मिल जाती है हॉस्पिटल में। आप तनख्वाह पे काम करते हैं? जी हाँ, यहाँ मैं तनख्वाह में काम करता हूँ मैं। तो उसके साथ ये सेवा भी? हाँ,
जी जी बहुत सी स्टोरी होंगी ये लोग जैसे बहुत से लोग खड़े हुए हैं, बहुत से लोग घर पे वापस भी जाते होंगे या किसी का कोई अपना आता भी होगा, ऐसा कुछ होता है? घर से जाने के बाद तो कोई जल्दी आता नहीं है, अपन मेन बात जब घर से जुड़ जाता है। बट यहाँ कुछ है जो यहाँ रहते रहते यहाँ खुद सेवा प्रदान कर रहे हैं। केजरीवाल जी बार बार पंजाब जा रहे हैं, पंजाब के लोगों को बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली के जैसी सारी सहूलियत दे दूंगा, आप मुझे वोट डालिए। पंजाब के लोगों को क्या करना चाहिए? ये दिल्ली का ये तो भाई बोल रहे हैं कि पहले सिस्टम ठीक ठीक था, अब थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। तो आप तो 2 साल से यहाँ पे हो। फ्रैक्चर ज़्यादा हो गया था, बीच में लॉकडाउन लग गया था, तो बीच में हॉस्पिटल बंद होने लग गया ना, बंद होने लग गया था, इसके चक्कर में दिक्कत हो गया था। अगर ये शेल्टर होम में ये लोग आपको नहीं मिलते तो फिर कहाँ जाते आप? आपका तो फिर तो हम तो रोड पे रहते, फुटपाथ पे। रोड पे रहते थे, हाँ जी। पहले भी रोड पे रहते थे। पहले भी रोड पे रहते थे। आप अपने घर से कब से आए हुए हो? घर से मेरे को बहुत साल हो गया जी, कौन 15 कौन था घर में आप में? 16 साल हो गया। घर में कौन कौन था आपके? घर में मम्मी पापा सब है। तो अभी क्यों बोल रहे हो कि फैमिली? नहीं तो फैमिली है, लेकिन नहीं जाता था ना, मैं घर नहीं जाता था। अब उनको कॉल, हाँ, यहाँ से कांटेक्ट कराया जब हुआ। तो अब वहां से कोई मिलने नहीं आया आपको? हाँ आया था, भाई आया था। भाई आया था, हाँ। उसने बोला नहीं कि मैं साथ लेके चलता हूँ? बोला था, मैं गया नहीं। क्यों? मैं नहीं गया, मैं इतना क्या गुस्सा हो गया परिवार से? सोचा यहीं सही होके जाऊंगा। सही होके जाओ। हाँ जी। तो जब आप घर आपने छोड़ा था, बाद में यहाँ पे कमाई वमाई की होगी, तो कुछ भेजा था घर को कि या नहीं? नहीं भेजा। तब वो चीज का लग रहा है कि हाँ, इसी चक्कर में नहीं जा पाया। अब लग रहा है कि मैंने पहले कुछ भेजा नहीं घर को, तो अब भी ऐसे हालत में जाऊंगा। हाँ। माँ से बात हुई? हाँ, पापा हुआ, सबसे बात हुआ। मैं इसी सोच के नहीं जाने की सोच रहा था। ज़्यादा दिन हो गया ना, कोई नहीं दे पाया कमा घर पे। कमा के घर पे नहीं दे इसी चक्कर में। माँ तो याद आती होगी। हाँ, आज तो आती, लेकिन क्या करें, मैं सोचा सही होके जाऊंगा। अभी दिल नहीं करता कि एक बार वो मिल जाए या आप मिला? हाँ, सोच तो रहा हूँ जाने का, मैं सोचता सही होके जाऊंगा। वीडियो कॉल पे बात हुई माँ से? हाँ, बात तो होता रहता। ऐसे कैसे इतनी इतनी मुश्किल क्यों कर ली जिंदगी? मम्मी पापा तो हमेशा चाहिए होते हैं, क्यों इतने साल? बचपन में भाग के आ गया था। क्यों फिर भी याद क्यों नहीं? बचपन में तो ज्यादा जरूरत होती है माँ की। होता है, लेकिन मैं इधर रह गया ना ज़्यादा दिन, फिर जाने का नहीं, पछतावा नहीं हुआ कभी? जाने का इच्छा नहीं किया। फिर माँ को तो याद आई होगी, उसको क्यों सजा दी आपने? आता था, लेकिन मैं नहीं जा पाता था। पछतावा नहीं हुआ? अब हो रहा है। माँ को तो सजा दी ना आपने, हाँ, नहीं देनी चाहिए थी। वैसे नहीं देने चाहिए थे, लेकिन क्या करें, इस लाइन में पड़ गया तो फिर नहीं जा पाया। हाँ जी, सॉरी बोलते रहते हैं। बोला अभी? हाँ। भैया ये बहुत इमोशनल सी कहानियां हैं, और भी बहुत से लोग होंगे ऐसे जिनका मतलब अभी उनकी फैमिली है, पर उसने फिर भी बोला कि है ही नहीं फैमिली, क्योंकि उसकी खुद की गलती है, अभी पछतावा है पता नहीं। दरअसल ये फैमिली से कई बार यहीं आके कनेक्ट होते हैं कि हमारे पास साइको सोशल काउंसलर, एक हमारी एक टीम मुश्किल में तो जरूरत भी ज्यादा एक टीम होती है, एक एनजीओ और आती है कोशिश नाम से, वो उसका काम ही फैमिली ट्रेस करने का। तो लोग बातें कर करके इनके फैमिली से कनेक्ट करवाता, और ये कोशिश करते कि घर जाए होम बैक, यानी इसके बाद वो क्या करते हैं कि अभी कईयों को हमने घर भेजा भी तो उन्हीं के माध्यम से भेजते हैं। बहुत लंबी लंबी बातें होती है, काफ़ी दिनों तक उनके साथ बात करना पड़ता है, तब जाके वो कहते हैं हाँ अब मुझे जाना है घर। ये मेरे मन में सवाल आया था कि काउंसलिंग का हम लोग कभी जिक्र भी नहीं करते, जबकि फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि काउंसलिंग होती है। जो लोग हैं, चाहे वो ड्रग लेते हैं, चाहे फिर ऐसे लोग हों जो बहुत छोटी उम्र में घर छोड़ आए, पर अभी उनको हमें लगता है कि एक समाज की एक धारा में जोड़ने के लिए जरूरी है कि वो फैमिली से काउंसलिंग पे क्या ये गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? क्योंकि आम गवर्नमेंट बहुत नॉर्मल सी बातें हैं कि ये फ्री दे दूं, ये फ्री दे दूं। काउंसलिंग ये बहुत ऊपर की बातें हैं, इस पे ये गवर्नमेंट का कुछ ध्यान है या? एक्चुअली गवर्नमेंट का तो हॉस्पिटल में है, काउंसलिंग का है, काउंसलर का है, हॉस्पिटल में काउंसलिंग भी करते हैं। जैसे HIV पेशेंट होता है तो उनके लिए वो काउंसलिंग करते हैं, तो उनके लिए अलग से। बट हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, जो लोग, क्योंकि इनसे ज़्यादातर कनेक्ट हम ही लोग रहते हैं यहाँ पर, तो हमें पता होता है कि इनसे कैसे और किस तरह से इनके सामने बातें रखना होता है। तो काउंसलिंग के माध्यम से इनसे हम जब बात करते हैं, 1-2 बार 3 बार बात करने के बाद फिर धीरे धीरे अपने परिवार, अपने घर के बारे में बताते हैं। अगर आप पहली बार पूछोगे इनसे तो आप कुछ और बताएगा, दूसरी बार पूछोगे तो कुछ और बताएगा, तीसरी बार धीरे धीरे जब इनका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, हमारे साथ एक रेपो बन जाता है, तब जाके हमें असलियत क्या है, कौन है, फिर वो हमसे शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम ये ट्राई करते हैं तो इनके परिवार
परिवार वालों के साथ इनको कनेक्ट करते, बात करवाते फ़ोन के माध्यम से, चाहे वो वीडियो कॉल हो चाहे ऑडियो कॉल हो। फिर धीरे धीरे जब इनके फैमिली से बातचीत होने लग जाती है तो हम फैमिली से भी बात करते और इनसे भी बात करके इनको घर भेजने की हम प्रक्रिया को आगे प्रोसेस करते जो भी है। यहाँ पे बहुत से मरीज हैं और मैंने ये देखा कि बहुत इंजर्ड हैं, सीरियसली इंजर्ड हैं। तो सबसे पुराने जैसे वो तो 2 साल से यहाँ से हैं, तो इससे भी ज्यादा कुछ ज्यादा वक्त का कोई इंसान है यहाँ पे? यहाँ पर है। कौन है? कितने समय से है वो? कितने समय से वो विजय बहादुर है, 4 साल से है यहाँ पर रह के, फिर लाइफ टाइम रहेगा ना, इसलिए। तो उनकी फैमिली भी नहीं है? उनकी नेपाल से वो। मुझे उनसे भी एक बार बात करनी है। नमस्ते भैया, कहाँ से हो आप और ये क्या हुआ है दोनों पाँव को? जी यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने? हाँ जी। ये क्या हुआ है? जी ये एक्सीडेंट हो गया जी। मैं सो रहा था रोड के किनारे, हाँ। होटल पर काम कर रहा था। तो जी रात को लेट हो गया, जगह नहीं मिली, तो जी रोड के किनारे पटरी पर सो गया। वहाँ जी एक मारुति वाले ने आके चढ़ा दिया। तो ये कब से हो आप यहाँ पे? जी 1.5 महीना हो गया जी। 1.5 महीना हो गया। हाँ जी। आपकी फैमिली कोई है पीछे? घर पर जी पिताजी तो हमारे गुजर गए, भाई है, भाभी है और आपकी बच्चे फैमिली? वो भी है जी। आपकी वाइफ है? हाँ जी। बच्चे? 2 लड़के हैं जी। तो उनसे बात हुई, वो लेने नहीं आए आपको? जी बात तो अभी नहीं हुई है। उनको पता भी नहीं है? नहीं पता नहीं है जी, बता रखा है यहाँ पर। एक नदीम भाई साहब आते हैं, वो बोले हैं घर का पता लगा करके, घर का फ़ोन नंबर का पता लगा करके हम बात करवा देंगे। आप पहले किस चीज पे बात करते थे? आपके पास नंबर नहीं है फैमिली का? नंबर था जी लेकिन जी याद नहीं है, लिख के रखे थे जी, गायब हो गया। सब गायब हो गया। हाँ जी। तो अभी कैसे मिलोगे फैमिली को? उनको तो पता भी नहीं है, उनको पैसे पूसे तो गए नहीं होंगे अभी 2 महीने से। 2 महीने से नहीं गए जी, पहले जाते थे पैसे। तो वो भी तो परेशान होंगे ना आपको लेके। हाँ जी, अब तो वो तो होंगे याद आती ही। है उनकी? याद तो आती है जी। अभी आप क्या वही कोशिश करेंगे या आपको भी याद करने की कोशिश करते हैं कि नंबर याद आ जाए, बच्चों से, वाइफ से बात हो जाए? नंबर याद आ जाए फिर तो हो जाएगी, नहीं तो नदीम भाई साहब थाने का पता दे दो ना जी, अपना पूरा पता दे दो तो वो पता लगा लेते हैं। वो वहाँ थाने पर फ़ोन करते हैं, थाने से जी वो घर का नंबर ले लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, आपका ध्यान पूरा रखा जाता है या नहीं रखा जाता? रखा जाता है जी, अस्पताल भेजते हैं। जो दवाई अस्पताल में नहीं मिल पाती है वो हमें यहाँ पर दवाई मौजूद होती है तो यहाँ पर देते हैं जी। तो ये अभी कितनी देर डॉक्टर ने बोला है, कितनी देर तक यहाँ पे रहना होगा आपको? अभी जी 2-2.5 महीना तो लग जाएगा जी, क्योंकि ये मांस पूरा कटा हुआ है दोनों पैर का। तो पुलिस में कोई शिकायत किसी ने की? उसको पकड़ा गया जिसने ये एक्सीडेंट किया? नहीं पकड़ा गया जी, वो भाग गया जी, रुका ही नहीं जी। रात को हुआ था जी, वो भाग गया जी, रुका ही नहीं वो। सवेरे 100 नंबर वाले लाए थे जी, रामा सेंटर में भर्ती करवाए थे। भैया ये ऑलमोस्ट कितने लोग इस वक्त जो, क्योंकि ये बेड सारे के सारे भरे हुए हैं, आगे भी मैं देख रही हूँ, उसके आगे भी देख रही हूँ, इस वक्त तकरीबन कितने लोग इस शेल्टर में हैं? 106 पेशेंट्स हैं यहाँ पर। उसके अलावा 27-28 लोग जनरल में भी सोते हैं। जो जैसे पेशेंट है वो 106 है, जिसमें अलग अलग तरह के पेशेंट्स हैं। सब यही नहीं कि ट्रॉमा इंजर्स वाले, उसमें टीबी भी है, ट्यूबरकुलोसिस है। उसमें 2 तरह का टीबी, एक तो जो फैलने वाला टीबी, उसके लिए भी अलग से हमने कर रखा। जो नहीं फैलने वाला उसका हम अलग से रखा। जो नहीं फैलने वाला तो 2 महीना 3 महीना दवा लेने के बाद उनको हम अलग शिफ्ट कर देते हैं। तो उस तरह का है। एक है HIV वाला। तो इस तरह का अलग अलग हमने वार्ड्स बना रखे, सब में अलग अलग तरह के पेशेंट रहते हैं। ये पूरे दिल्ली में यही एक शेल्टर है या इसके जैसे कुछ और भी है? कुछ और भी है, जिसे एक तो निजामुद्दीन सराय का लेखा में है, वो अदर ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। एक हमारी खुद की शेल्टर है महिलाओं के लिए, वो यहाँ पर है दिल्ली में मलकागंज पे। बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से 2 हैं, एक औरतों के लिए, एक मर्दों के लिए। एक्चुअली दिल्ली गवर्नमेंट ने शेल्टर प्रोवाइड करवा रखा है। इस तरह के शेल्टर, स्पेशल शेल्टर जिसे कहते हैं, वो दिल्ली सरकार ने दे रखी है, जिसके अंदर जो काम होती है दिल्ली सरकार के साथ मिलकर जो NGO होते हैं, NGO
एनजीओ चलाती है। इसके तो खर्चे भी बहुत होंगे, बिजली का है, दवाइयों का है, और इनको खाना देना, सारा दिन संभालना, वॉशरूम, हर एक जगह पे सर्विस मैन तो होंगे ना, अलग अलग सारा खर्चा गवर्नमेंट देती है। ये गवर्नमेंट से इस शेल्टर का और ये जो यहाँ का स्टाफ का इनका आता है। इसके अलावा अक्षय पात्रा यहाँ खाना दे रही 2 टाइम का, जी। जो पहले स्कूलों में मिड डे मील दिया करते थे, अब वो दिल्ली सरकार के साथ मिलके यहाँ जो एनजीओ रैन बसेरे है उन पे खाना दिया जा रहा है, और सुबह ब्रेकफास्ट भी सरकारी प्रोवाइड करवा रही है। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट होता है वो हॉस्पिटल से ही होता है, दवाई जो होता है हॉस्पिटल से होता है, नहीं होता है तो अलग अलग जगह से फंड्स रेस करके अलग अलग से वो करके देते हैं। ਸੋ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਆ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਪਤਨੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਖੁਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈਆਂ। मेरा नाम नौशाद है, मैं यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर हूँ। तो ये जो मरीज हैं, मैंने पीछे एक वार्ड में देखा कि बहुत से लोग हैं सीरियसली इंजर्ड हैं और आप उनको ड्रेसिंग भी कर रहे थे, तो ये लोग कौन हैं? ये टीबी के मरीज हैं और उस तरफ कौन से हैं? ये इस तरफ भी टीबी के मरीज़ हैं और उस तरफ भी हैं। उधर जो रिसेंट में आते हैं जिनका मतलब स्पुटम पॉजिटिव आता है, जो पल्मोनरी टीबी होता है, वो मतलब न्यू पेशेंट उस तरफ रखते हैं। उसके बाद ये 1-2 महीने का एक आईपी फेस होता है, तो वो जब उनका कंप्लीट हो जाता है और स्पुटम टेस्ट होता है वो नेगेटिव आता है, तब हम उनको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो इधर मतलब जिनका स्पुटम मतलब नेगेटिव आ गया वो पेशेंट होते हैं, उधर मतलब रिसेंट वाले रहते हैं। और ये दिल्ली में मतलब एक ही रिकवरी शेल्टर है जिसमें टीबी पेशेंट रहते हैं, और ऐसा दिल्ली में कोई अभी तक रिकवरी शेल्टर नहीं है जहाँ टीबी मरीज हो, होमलेस ये जो शेल्टर होम का मैं देख रही हूँ, तो पहले वाली गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड किया हुआ था, तो अभी फर्क क्या है पहले और अब में? क्या फर्क है? क्योंकि हमारे पंजाब के लोगों को बहुत बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं केजरीवाल जी कि आप हमें वोट डालिए तो हम आपको बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देंगे, दिल्ली मॉडल देंगे। तो वो मुझे जानना है कि अभी ये लोगों के खाने पीने का, रहने सहने का और यहाँ पे ट्रीट करने का यहाँ पे रखा हुआ है उनको, इतने सारे लोग हैं, बहुत से चल फिर भी नहीं सकते, तो इन सब का फिर कैसे करते हो? गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? इसमें गवर्नमेंट का कुछ मतलब खास ज़्यादा रोल नहीं है एक्चुअली। उन्होंने बस ये केबिन बना के दे दिया और स्टाफ दे दिए हैं, और ज़्यादातर काम जैसे कि इसमें ट्रीटमेंट का है, क्योंकि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सारे सपोर्ट लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और मेडिसिन वहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। उसके अलावा जो वहाँ उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से आप लेके आते हो, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है क्या? वो वहाँ पे सहूलतें अच्छी नहीं देती या फिर उनके जरिए आपको यहाँ पे कुछ मिलता? नहीं, पहले से यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल बहुत अभी मतलब अच्छा हो गया है। पहले मेडिसिन वगैरह उतनी नहीं मिल पाती थी, अभी इस मेडिसिन वगैरह सारी मतलब अवेलेबल रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस पहले टेस्ट के पैसे वगैरह लगते थे, अब टेस्ट के पैसे नहीं लगते। जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं मतलब उन हॉस्पिटल में अब सारे टेस्ट फ्री होते हैं। तो इस पूरे शेल्टर होम में कितने कैबिन हैं और कौन कौन से किस किस टाइप के मरीज हैं? ये पूरे शेल्टर में कितने कैबिन्स कितने हैं ये जो बने हैं? इस दोनों मतलब शेल्टर में टोटल 6 केबिन है। हाँ। एक ऑर्थोपेडिक प्लस कैंसर वाले हैं, डायबिटिक हैं और न्यूरो के हैं, फ्रैक्चर हैं, और 2 वार्ड हैं जिनका टीबी का वार्ड है। एक है HIV वार्ड है, उसमें HIV पेशेंट रहते हैं। एक जनरल शेल्टर है जिसमें सिर्फ जनरल लोग रहते हैं जो यहाँ से रिकवर हो जाते हैं टीबी के या फिर फ्रैक्चर या और कोई डिजीज़ के, तो जनरल शेल्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। और एक हमारा ये पीछे ऑब्जर्वेशन वार्ड है, जो न्यू पेशेंट आते हैं जिनको टीबी के सिम्टम्स रहते हैं, जब तक उनका मतलब कोई बीमारी डायग्नोज नहीं हो जाता तब तक हम उनको यहाँ बीच में रखते हैं। जब डायग्नोज हो जाता फिर हम उनको वार्ड में शिफ्ट करते हैं कि आपको मतलब जैसे टीबी आया तो टीबी वार्ड में शिफ्ट किया, या फिर और कोई बीमारी है तो उनको अदर वार्ड में शिफ्ट करते हैं। आपके एक लड़के से पहले भी मैंने बात की, उसने भी ये बोला कि शेल्टर होम या ऐसी सहूलतें पहले भी गवर्नमेंट देती थी,
पर केजरीवाल साहब के आने के बाद जो सहूलत अच्छी हुई है, मुझे ये समझना है कि आमतौर पे क्या होता है कि जब इलेक्शन लड़नी होती है किसी बंदे ने, तो वो बहुत बड़े बड़े वादे करता है, तो उसके बाद 4 साल वो सोया रहता है। उसके बाद जब उसको पता होता है कि नई वाली इलेक्शन या फिर किसी और स्टेट में, जैसे अब केजरीवाल साहब ने वहां पे गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में, तो तब वो एक्टिव हो जाते हैं। तो मुझे ये जानना है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से ही जो आपने बोला कि सहूलत पहले से बढ़ गई है, कुछ आसानी जरूर हो गई है, तो पहले से ही हुई है या फिर अब किसी और स्टेट में या फिर इलेक्शन नजदीक आने पे तभी ये करते हैं ऐसा? एक्चुअली जब से सरकार आई है, मतलब अभी तक जहाँ पे हम लोगों ने काम किया है, जैसे हॉस्पिटल में या नाइट शेल्टर्स में, वो तो सेम ही रहा है। ऐसा कुछ है नहीं कि इलेक्शन के टाइम में कुछ ज़्यादा मतलब काम हो या फिर हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट आई है तब हाँ। से ये वैसे ही चल रहा है? हाँ, वैसे ही चल रहा है। अच्छा, तो और अभी क्या उम्मीद है आपको कि क्या बेहतर कर सकती है गवर्नमेंट? क्योंकि अभी जो एक परफेक्ट मॉडल जो केजरीवाल जी बोलते हैं, हमने देना था दे दिया, ये दिल्ली के लोगों को, बहुत सी औरतों को सहूलतें मिल गई हैं, बहुत कुछ हो गया, तो आगे क्या लगता है गवर्नमेंट बस यही पे दूसरी बार चुनाव, तीसरी बार लड़ेगी यहाँ पे दिल्ली में, या फिर आपको लगता है कि कुछ और बेहतर हो सकता है जो आपका आइडिया हो और गवर्नमेंट उसको भी फॉलो कर ले अभी बेहतर बनाने के लिए? ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਨ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।